یا رسول اللہ. بیٹا مائک کون کھولے گا؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، کیا نمبر ہے یاد؟ نعرہ حیدری، کیا نمبر ہے مجھے؟ صلوات، 555 کربلا 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 وسط پہ دو برا، ایک ہے یاد خدا، ایک وفاد خدا، ایک ہے ناز محمد دا، ایک زہرا دی دعا، کربلا کربلا، ایک دہت نب کے ہے، ایدران دار ہے، ایک نچا کی محمد کی دیندار ہے، ایک دے ناز خدا بے کے لے، ایک دے عالیہ، کربلا 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 صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ماشاءاللہ. گزارش کروں گا حاضر رضا سے تشریف لائیں اور یوٹیوب سے کرو یا بابر کے پیج سے کرو؟ کھولو بابر کا پیج. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ اور نہیں آیا اصل آ گیا؟ ہاں ادھر بعد بس اصل. نعرہ حیدری، ہادی بڑا چھوٹا پڑھنا. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پامال لاش دیکھ کے کہتی ہے بیبیاں، پامال لاش دیکھ کے کہتی ہے بیبیاں، زہرا کی طرح ٹوٹی ہے قاسم کی پسلیاں، پامال لاش دیکھ کے کہتی ہے بیبیاں، ٹکڑے پکار دشت میں لبیک یا حسین، ٹکڑے پکار دشت میں لبیک یا حسین، آ کر کہا جو مولا نے، قاسم ہو تم کہاں، پامال جیتے جی جو ہوا ہے اسے سلام، پامال جیتے جی جو ہوا ہے اسے سلام، رو کر لہو یہ کہتے ہیں خود صاحب زمان، پہلے 4G پہ کرو نا پھر اس کو. آ جاؤ میرے بھائی تلک بول یہ حسن، آ جاؤ میرے بھائی تلک بول یہ حسن، قاسم نہ لو حسین کی غربت کا امتحان،
قدر کرے گی کس طرح دیدار آخری. ہائے سوموں کے چاند سے چہرے پہ ہے نشان. لگتا ہے مجھ کو میر تکلم خیام سے. لگتا ہے مجھ کو میر تکلم خیام سے. اب بھی سنائی دیتی ہے پرواں کی ہچکیاں. پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہے بیبیاں. پامال لاشا دیکھ کے. سلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ڈاکٹر البید جناب سے حسن شاہ صاحب سے بھی تشریف لائے نیچے کیسے ہوگا؟ اور اپنے مخصوص انداز میں ذکر محمد اور محمد بیان فرمائیں بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. گلوں سے کھینچ کر عطار نے خراب کی وہ اجالی کا پسینہ کجا گلاب کی وہ. اسی لیے تو نکلتا ہے عطر مٹی سے بسی ہوئی ہے زمین میں ابو تراب کی بو. صلوات پڑھو. اللهم صل على محمد وآل محمد. بروز حشر میدان میں علم کا ایک نشان ہوگا جو اس کے سائے تلے ہوگا وہ خوش قسمت جوان ہوگا. ملا نہ سایہ گر تو گرمی مار ڈالے گی. علم کا تو منکر ہے بتا اس دم کہاں ہوگا. کیا کہتے ہیں؟ صلوات پڑھو بابا. صلی علی محمد وآل محمد. قصیدہ سرکاری مولانا. بسم اللہ. بسم اللہ. اللہ کی ہے پہچان حسین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ کی ہے پہچان حسین. ہر جگہ ہے خدا ویسے ہی یہاں پر ہیں وہ بھی جلوگر. ایک وہ ہے ایک سلطان حسین. ماشاءاللہ. کیا کہنے ہیں؟
دن منکر حسین کہ حسین دے منن والے مر گئے جان چھٹ گئی ایک ہندو نے دے بارے دا جواب دیتا ہے فرماندے اس کے گدا مر کے بھی کب مرتے ہیں اس کے گدا مر کے بھی کب مرتے ہیں اسے سجدہ خود یہ بھی کرتے ہیں دیکھ کے نوری سنگم ان کا بولی روپ تمہاری وہ اللہ ہے سب کا پر اپنا ہے بھگوان حسین بھگوان حسین ہر جگہ ہے خدا ویسے ہی یہاں پر ہیں وہ بھی جلوہ گر ایک وہ ہے ایک سلطان حسین یا علی کیوں ڈروں اس زمانے سے میں جب کہ دامن تیرا میرے ہاتھوں میں ہے یا علی کیوں ڈروں اس زمانے سے میں جب کہ دامن تیرا میرے ہاتھوں میں ہے فکر کوئی نہیں غم کا طوفان ہو ہر بلا کی دعا میرے ہاتھوں میں ہے سرکار کا سمدیوا پتر دی لاش تے آئیے پتر دی لاش دا ایک ٹکڑا چاہے میں لاش پڑے سچ پوچھ دیو تے قاسم دی لاش نہیں آئے چند ٹکڑے آئے میری سین پہلا ٹکڑا چاہے پتر دے نال جڑی میری سین گل کیتی ہے سین فرماندی ہے بیٹا جب خلد میں جانا باپ کو سارا حال سنانا کیڑا حال کہنا بابا سے شادی ہوئی تھی میری کہنا بابا سے شادی ہوئی تھی میری بارات جنگل میں لوٹی گئی میری دلہن بھی گھونگھٹ میں روتی رہی تیرا فرمان میری ماں نے پورا کیا دیکھو رنگے ہنا میرے ہاتھوں میں ہے آدم بیان دے دفن دے قابل آئے وہ لاش ہوندی تے آندہ بان وچ میں دفنائے کوئی جوڑ سلامت نہیں ملیا وہ پھریا وچ سہرائے وہ کل لاش دا میں تو اد ملیا باقی بن گئی خاک شفائے ایو قاسم ہے جیڑا گھن آیا وہ دیو بیبیاں کوئت
अकबर मोहम्मद व आले मोहम्मद। मोमिनीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में कुछ शर पसंद लोगों ने ऐसे हालात पैदा कर दिए किबला के लिए, मौलाना आसिफ रज़ावी साहब के लिए, और हमारे यहाँ अशरा हो रहा था। किबला माशाल्लाह बेहतरीन अंदाज में रोज़ाना फ़ज़ाइल मसाइब मोहम्मद आल मोहम्मद बयान फरमाते हैं। कल भी किबला ने बहुत माशाल्लाह बेहतरीन अंदाज से पढ़ा, लेकिन किबला फ़िक्रमंद थे। आसिफ रज़ावी साहब के बारे में मुझसे पूछ रहे थे कैसे हालात बन गए तो क्या होगा। और आसिफ रज़ावी साहब जब आज बरतानिया तशरीफ़ लाए तो हमने किबला से पूछा, इजाज़त ली कि किबला आप बताएं, क्योंकि अशरा आपने पढ़ना है। तो किबला ने इतना फ़राग दिली का सबूत दिया, उनका कोई बात नहीं, मैं तो आपका अपना हूँ, वो हमारे मेहमान हैं, इंशाअल्लाह जो है उनको आप ज़रूर पढ़ाएँ। तो ये हमारे किबला की एक फ़राग दिली है। हम दुआगो हैं कि किबला के अंदर जो दर्द है कौम का, कौमियात का, खुदावंद ताला इनकी तौफ़ीक़ात में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। लेकिन किबला उसी तरह से अपने पूरा टाइम पे पढ़ेंगे रोज़ाना। मैं मुल्तमिस हूँ किबला काबा हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना मोहम्मद आसिम बिलायती से कि तशरीफ़ लाएँ, जब मिंबर हो और ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद से हमें मुस्तफ़ीद फरमाएँ। उनके बाद ख़तीब विलायत अली किबला आसिफ अलवी साहब ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएँगे। अपनी अपनी इबादत की कबूलियत के लिए एक मरतबा फिर सलावत पढ़ें। मजलिस अज़ा की कबूलियत के लिए एक मरतबा फिर सलावत। अपने अपने बीमारों की शफा याबी के लिए खुसूसन जिन मोमिनीन व मोमिनात ने हमारे में दुआएं लगाई हुई हैं, और बिलखसूस हमारे खजानची हज़रत सिद्दीन साहब, नासिर भाई की वालदा साहब, और एक मोमना पाकिस्तान में बीमार है। परवरदिगार आलम से दुआ है बीमार करबला के सदका में सबको शिफाए कुल्ली अता फरमाए। हमारे सुहेल भाई बीमार हैं, परवरदिगार आलम इनको शिफाए कुल्ली अता फरमाए। सब बीमारों की शिफा याबी के लिए अपने अपने बीमारों को भी ज़हन में रखते हुए एक मरतबा बुलंद आवाज़ से सलावत पढ़ें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत यजीदियत मुर्दाबाद, मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुश्मनों पे लानत, आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कातिलों पे लानत, और मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिस समावातिस सब'i व रब्बिल अरज़ीनिस सब'i वमा फ़ीहिन्ना वमा बैनहुन्ना वमा फ़ौक़हुन्ना वमा तहतहुन्ना वहुव रब्बुल अर्शिल अज़ीम। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अत्तहिय्यतु वल इकराम लिसय्यदिल अनाम सय्यदिना व नबियना व तबीब नफूसिना व शफ़ी ज़ुनूबिना व हबीब क़लूबिना हबीब इलाहिल सय्यदिल मुरसलीन सय्यदिस सकलैन जद्दिल हसन क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन शुरफा व लअनतुल्लाहि अलैहिम मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम
الحسین منی و انا من الحسین محمد وآل محمد. میری دعا ہے خدا کے دو عالم آپ سب کا اس بارگاہ میں آنا اپنی بارگاہ میں اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے. لا آمین. جو بھی تمنائیں آپ کے دلوں میں ہیں وہ علیم الذات صدور اللہ آپ کی تمام جائز دلی حاجات کو پورا فرمائے. یہ ہماری خوش بختی ہے یا آپ لوگوں کا صبر کے ساتھ مجھے سننے کا صلہ ملا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں ماہر فلکیات بھی ہیں ماہر اشتانیات بھی ہیں. ناصر صاحب کو فون کیا ناصر بھائی کو کہ کون پڑھ رہے ہیں آپ کو. انہوں نے کہا یہ بلیتی صاحب پڑھ رہے ہیں. انہوں نے کہا جیسے پانی نہ ملے تو بندہ تیمم پہ گزارا کرتا ہے تو اس وقت آپ تیمم ہی کریں گے. یہ آپ کی خوش قسمتی ہے آپ جی بھر کے غسل بھی کر سکتے ہیں. الوی صاحب آ گئے ہیں اور جو آپ کی تھکن ہے وہ ساری کی ساری اتاریں گے. بہرحال یہ آپ کو بتا دوں وہ ہمارا کلندری ہے نا اس کو آج میں نے جا کے ڈانٹا ہے کہ تم کیا شیعت سے خارج ہو گئے مجلس پہ نہیں آ رہے. تو اس نے کہا قبلہ صاحب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو سپیکر ہے اس کو بھی ثواب ملے گا. اس میں ثواب عذاب والی کون سی بات. کہتا ہے وہ جتنے پڑھنے والے ہیں سب پیسے کے لیے پڑھتا ہے. وہ پٹھان ہے اب اس کی مرضی ہے جو بات کر دے. اس نے کہا جیسے سیل ڈال دو بیٹری کے اور یہ اس کے اوپر لگا دو ایسے ہی پڑھنے والا بھی ہو گیا سننے والا بھی ہو گیا. نہیں ایسی بات نہیں ہے. الحمدللہ یہ یاد رکھیں قرآن مولا کائنات نے کیا فرمایا کہ قرآن پاک پڑھنے والے لوگوں کی 3 قسمیں ہیں. ایک وہ ہوتا ہے جس کی آواز بہت خوبصورت ہوتی ہے اور وہ اپنی خوش الحانی دکھانے کے لیے تلاوت قرآن کرتا ہے تاکہ لوگ واہ واہ کریں یعنی داد پانے کے لیے وہ قرآن پڑھتا ہے. اور دوسرا وہ ہوتا ہے جو امداد پانے کے لیے وہ قرآن پڑھتا ہے پیسے کے لیے. اور تیسرا وہ ہوتا ہے کہ جو خوشنودی خدا کی خاطر پڑھ کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے. مولا فرماتے ہیں جو جس نیت سے پڑھتا ہے پروردگار عالم اس کو اس کا اجر دے دیتا ہے. وہ تو سامت قرآن ہے نا. یہ ناطق قرآن کا ذکر ہے جو جس نیت سے کرے گا. بے شک داد کے لیے کرے گا تو داد ملے گی امداد کے لیے کرے گا. ہم نے مجلس پڑھنی ہے صرف اور صرف جناب سیدہ کی خوشنودی کے لیے. اور یہ جو آپ لوگ وقت سے پہلے آ جاتے ہیں ہادی کو سنتے ہیں ببر کو سنتے ہیں مظاہر کو سنتے ہیں یہ آپ کو اجر صرف جناب سیدہ ہی دے سکتے. کسی بندے بشر کی مجال نہیں ہے. میں بہرحال سرور کائنات کیا فرما رہے ہیں الحسین منی و انا من الحسین. کل بات رکی تھی شہید پر. شاہد ایک ہوتا ہے شاہد ایک ہوتا ہے شہید. شاہد کون ہوتا ہے جو واقعے کو دیکھ رہا ہوتا ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدن ہم نے آپ کو شاہد بنا کے ان کے اوپر گواہ بنا کے بھیجا ہے. شاہد اور شہید میں فرق کیا ہے؟ شاہد جو ہے وہ مسلسل دیکھ رہا ہے اور اللہ کا رسول اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول کے بارے میں کیا ارشاد فرما رہا ہے انا ارسلنا الیکم شاہدن ہم نے ان کے اوپر آپ کو شاہد بنا کے بھیجا ہے. یہ قرآن کیا صرف عرب کے بدوؤں کے لیے تھا یا اس دور کے لیے تھا؟ آج بھی جو قرآن پڑھے گا تو اس کا مطلب ہے رسول خدا اس کو دیکھ رہے ہیں. کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو شاہد بنا. قیامت تک جو بھی قائم
मुहम्मदुन रसूलुल्लाह पढ़ने वाले के ऊपर, सिर्फ इन्हीं पर नहीं, जो जो उनके दौर में भी होंगे, उन सब के ऊपर परवरदिगार आलम शाहिद बना के भेज रहा है। और शहीद कौन था? शाहिद गवाह है। शहीद वो गवाह है कि जो जिसकी गवाही मुकम्मल हो चुकी हो, जिरा हो चुकी हो। शहीद उस गवाह को कहते हैं। अब दुनिया वाले शाहिद में और अल्लाह वाले शाहिद में फर्क क्या होता है? शाहिद वो होता है कि एक वाकया हो रहा है और बंदा देख रहा है। मसलन ये मजलिस अज़ा जारी है, आप शाहिदीन हैं, नाजरीन शाहिदीन, देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तो आप क्या है? मुशाहिदा कर रहे हैं, देख रहे हैं, मुसलसल देख रहे हैं, सुन रहे हैं। कोई समझे ना समझे ये तो और बात है कि कितने दरबार रिसालत से उठ के बाहर निकल के पूछते थे आज रसूल खुदा क्या फरमा रहे। ये तो जमीन है, तो अपने अपनी किस्मत की बात है ना। आज आप ढीले होके सुन रहे हैं। तो शाहिद कौन है? जो मुसलसल देख रहा है। दुनिया वाला शाहिद वो होता है जो वाक़े का मोहताज होता है, वाक़या हो रहा हो और वो वहां पर मौजूद हो, तो फिर देखने वाले को कहते हैं कि ये शाहिद है। दुनिया जिसको शाहिद कहती है वो वाकया का मोहताज होता है, लेकिन जिसे अल्लाह शाहिद बना के भेजे वो वाकये का मोहताज नहीं होता। अगर बच्चों को बहलाने के लिए कह दे कि बच्चों तुम्हारे कपड़े सिलने के लिए दर्जी के पास गए, परवरदिगार आलम को कहना पड़ता है जिब्राइल जल्दी जा, मेरी कनीज की ज़बान अतहर से ये अल्फाज निकल गए। खबरदार, आज जाके ये नहीं कहना कि अमीन वही आया हूं, आज जाके ये नहीं कहना सरदार मलाइका आया हूं। जब फिजा तुझसे पूछे मन लिहाजुल बाप, कौन है दरवाजे पर, कहना ना खयातुल हसनैन। माशाल्लाह माशाल्लाह। नारे हैदरी हैदरी। ये तो है शाहिद जिसके ऊपर जिरा भी हो सकती है। शहीद वो है कि जिसकी शहादत मुकम्मल होगी। क्या शान है हसनैन के बाबा की, जिसके बारे में परवरदिगार आलम फरमाता है कुल कफा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। मेरे और तुम्हारे, मेरा हबीब इन काफिरों से, इन मुशरिकों से, इन बदुओं से कह दीजिए, फरमा दीजिए, मेरे और तुम्हारे दरमियान कुल कफा बिल्लाह है, एक अल्लाह गवाह काफी है। तुम जो कहते हो कोई गवाह कोई गवाह कोई गवाह, एक अल्लाह गवाह काफी है। दूसरा वो गवाह काफी है जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। वाह 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 वाह। किसके पास है? जिसके पास थोड़ी सी किताब का इल्म था, वो पलक झपकने में, हजरत सुलेमान का थोड़ा सा वाक्य आपको इशारा किया था। हजरत सुलेमान ने जब तख्ते बिल्कीस मंगवाने के लिए जिन्नात को कहा कौन कितनी देर में ले आएगा, किसी ने कहा एक साथ में, किसी ने कहा आधी साथ में, एक घंटे में, आधे घंटे में, एक दिन में, लेकिन आप इनकार फरमाते रहे। एक वजीर जो दाएं तरफ खड़ा था हजरत सुलेमान का, आसिफ बिन बरखिया, कुरान कहता है उसके पास थोड़ा सा किताब का इल्म था। कितना था? थोड़ा सा किताब का इल्म था। उसने कहा या नबी अल्लाह, अगर आप मुझे हुक्म दे तो मैं पलक झपकने से पहले वो तख्ते बल्कीस आपके सामने हाजिर कर दूंगा। अभी बात मुकम्मल नहीं हुई थी, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पलक झपकने का इरादा फरमाया, तख्ते बल्कीस सामने हाजिर था। ये था वो जिसके पास थोड़ी किताब का इल्म था, और जिसके पास पूरी किताब का इल्म हो उसके इल्म का क्या
کہنا ہوگا. شاید یہی وجہ ہے کہ جب پوچھنے والے نے یہ کہا تھا یا علی آپ توقف نہیں کرتے, سوچ و فکر نہیں کرتے, غور و فکر نہیں کرتے, تھوڑا سا بھی وقفہ نہیں لیتے, جو ہی سوال کیا جاتا ہے فوراً سوال کا جواب دیتے ہیں. آپ نے کہا بتا تیرے ہاتھ کی انگلیاں کتنی, تیرے ہاتھ کی انگلیاں کتنی. اس نے فوراً کہا کہ حضور 5 انگلیاں. آپ نے فرمایا تو نے توقف نہیں کیا, تو نے تدبر نہیں کیا, تو نے غور و فکر نہیں کیا, فوراً کیوں کہا کہ حضور 5 انگلیاں. کہنے لگا کہ یا علی ابن ابی طالب یہ کوئی سوچنے والی بات ہے, یہ کوئی غور و فکر کرنے والی بات ہے. یہ ہاتھ ہر وقت میرے سامنے رہتا ہے, میری خدمت میں رہتا ہے. اس وقت مولا کائنات نے فرمایا یاد رکھ جس طرح تیرے ہاتھ کی 5 انگلیاں ہر وقت تیرے سامنے اور تیری خدمت میں رہتی ہیں, پروردگار عالم کی پوری کائنات میں علی کے سامنے ہر وقت حاضر بھی رہتی ہے. عظمت کتنی عزت پروردگار عالم نے تم علی والوں کو دی. سرور کائنات نے آپ کو معراج کروا دی ہے عزت کی یہ فرما کے کہ من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ, کہ جو بھی آل محمد کی موت میں مرا اس کو میت نہ سمجھنا بلکہ یہ سمجھنا کہ وہ شہید ہے, گواہ. محمد و آل محمد بلند تر صلوات. لوگ جو ہیں وہ تو مجلس کے بارے میں بات کرنا ہے, فقط دل میں محبت ہو. اب تو اپنے بھی شروع ہو گئے ہیں, اپنا کہتے ہوئے بھی زبان لڑکھڑاتی ہے. جو کہتے ہیں جی مجالس میں یہ بھی بدعت آ گئی, یہ بھی بدعت آ گئی. کسی ہندو نے کیا خوب کہا تھا کہ ہو کہ ہندو مجلسوں میں آئے ہم کو بیداری ملی. وہ دکھاوے کے مسلمان جن کو بیداری ملی, دشمن شبیر تیری اس تقسیم پہ راضی ہے ہم, تجھ کو بدعت مل گئی ہم کو آزاداری. سرکار کی حفاظت کے لیے, ان کی پریشانیوں کے خاتمے کے لیے اور آپ اپنے دل کی خوشی کا اظہار کرنے کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں. مولا کا کوئی بھی ذاکر مداح خان جو ہے وہ چھوٹا نہیں ہوتا ہے, اور کسی کو مولا نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ وہ دشمنان اہل بیت کا منہ بند کر رہا ہے. پروردگار عالم نے ان کو توفیق عطا فرمائی, ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. بہرحال عام بندہ مرے تو وہ شہید ہوتا ہے, اور جو نصرت حسین علیہ السلام میں اس کی کیا عزت ہو, کیا عظمت ہو. آج چونکہ شہزادہ قاسم کی مہندی برابر, میں نے یہ بات اس لیے کہ کچھ اپنے کہتے ہیں مہندی وہاں کوئی پانی تھا, ہم نے کب کہا کہ پانی تھا, یہ تو ہم اپنی حسرت کا اظہار کرتے ہیں. ہاں کل ہی میرے پاس کربلا کے لائیو دکھایا, میرے دوست دکھا رہے تھے, وہاں پر مہندی کا جلوس نکلا ہوا تھا, اور ایک سید زادے کو انہوں نے دولہا کا لباس پہنایا ہوا, اور میں دیکھ رہا تھا کہ جو بھی گزرنے والا نا اس کو دیکھ کے رو رہا تھا, وہ کوئی مجلس نہیں پڑھ رہا. یہ ہمارے ایک دل کی حسرت ہوتی ہے, میرا اللہ جانتا ہے. وہ تو شبیہ بنا ہوا بچہ سید تھا نا, اس کو ہر گزرنے والا دیکھ کے رو رہا تھا. ہاتھ اس طرح جس طرح لوگ حجر اسود کی طرف ہاتھ کر کے سلام کرتے, اس کو ہاتھ کر کے سلام کر کے کہہ رہا تھا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. ہاں جو خود شہزادہ دولہا بنا ہوگا وہ کتنا خوبصورت, اتنا خوبصورت
खूबसूरत था हसन का दूल्हा कि एक दूल्हा बारात लेके गुजर रहा था वहां से, करबला से। उसकी एक नजर पड़ी है शहजादा कासिम पे, एक नजर पड़ी है हुसैन गरीब पे। अजरकुमुल्लाह, अजरकुमुल्लाह। उसने अपने सेहरे तोड़ दिए। माँ को कहता है, अम्मा ये जो गुर्बत की सदा बुलंद कर रहा है ना, मेरा दिल इसकी तरफ खिंचे जा रहा है। कलमा गो भी नहीं था, ईसाई मजहब का, सेहरे तोड़ दिए। माँ तू मुझे इजाजत दे। दुल्हन को कहता है मुझे इजाजत दे, मैं इस गरीब के पास जाना चाहता हूं। वो कहते अल्लाह जाने इसकी आवाज में इतनी गुर्बत है, हम तुझे अकेला नहीं जाने देगी, हम भी तेरे साथ ही जाएंगे। जब आया ना, बहुत मुख्तसर करके आपका ज़हमत को तमाम करूं, करीब आया, मजलूम करबला की गुर्बत को देखा, मजलूम करबला की गुर्बत का मुशाहिदा करके उसे रात आने वाला ख्वाब याद आया। कहते पता नहीं क्यों मैंने हजरत ईसा को अपने ख्वाब में परेशान हाल देखा था। कह रहा था कि मुझे मदीना वाले मोहम्मद के सामने शर्मिंदा न करना। अब मुझे याद आ गया, क्या तू मोहम्मद मदीने वाले का निवासा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब मौला ने फरमाया ना, घुटनों के बाद जमीन पे बैठा, हाथ मांग के कहता अपने नाना का कलमा पढ़ा। जब कलमा पढ़ रहा था, माँ ने कहा अब मैं तेरे ऊपर राजी तब होंगी जब तू इस पे कुर्बान हो जाएगा। अज़ादाराने मज़लूम करबला, ये हुसैन का वो मेहमान है जिसको हुसैन पानी भी नहीं पिला सके। नाम है वाहब कल्बी। जनाब वाहब कल्बी इजाजत लेके मैदान कारजार में आ गए। आपकी रहमत को तमाम करो। मैदान कारजार में आए, रिक्स पड़ा, मैं वाहब इब्न खबाब कल्बी हूं, आओ मेरी तलवार का जिसने मजा चखना है चखो। मैं एक गरीब का नासिर हूँ, मैं एक अल्लाह रासी का नासिर हूँ, मैं एक परदेसी का नासिर हूँ, मैं रसूल खुदा के नवासे का नासिर हूँ। ये कह के उसने जब हमला किया, कभी दाएं तरफ से हमला करता है, बाएं तरफ से करता है, 20 मूजियों को फिरनार करके माँ की खिदमत में आया। अम्मा राजी है? कैसी माँ थी? कहती है कि अभी कोई राजी होने की मंजिल थोड़ी आई। मेरा अल्लाह जानता है, जब दोबारा वाव किया है, सुन्नत मौला अब्बास अदा की, दोनों बाजू कलम हो गए। जब वाव के दोनों बाजू कलम हुए, माँ खेमे के दर पे देख रही थी। तारीख बताती है, बिहार अनवार की पहली जिल्द में पढ़ लेना, कि जब बाप की माँ ने देखा ना बेटे के हाथ कटे हुए हैं, सर के साथ लड़ रहा है, किसी दुश्मन को पाँव मार रहा है, इस माँ से सब्र ना हो सका, खेमे की एक चौक उखाड़ी, कहा बाप इंतजार करना, माँ आ गई। पापा हुसैन को खुद जाना पड़ा। बाप की माँ तेरे ऊपर जिहाद साकिन है। इधर वहाब गिरा, उधर वहाब की बीवी, उसने आके वहाब के चेहरे पे अपना चेहरा रखा। शिमर मलाऊन ने इशारा किया, उसके गुलाम ने नेजा मारा। वहाब की बीवी वहाब के साथ ये करबला की पहली शहीदा है जो करबला में अपने शोहर के साथ शहीद हुई। उसके बाद जब जालिम ने वहाब का सर काटा, वहाब की माँ की तरफ फेंका, वहाब की माँ ने सर को उठाया, सर को उठा के बोसे दिए, सर का बोसा लिया, होठों का बोसा लिया, आंखों का बोसा लेके एक मर्तबा सीने से लगा के फौजी अशकिया की तरफ फेंक दिया। कहती है कि जो हुसैन पे सदका होगा, अजरो को मल्ला, अजरो को मल्ला। मैं कहता हूँ वहाब की माँ और बेटे के बाजू कटे तो इससे सब्र ना हो सका। इस हुसैन हसन के दूल्हे के लाशा जब खेमे में आया था, बीबी ने क्या देखा? इमाम हुसैन कह रहे ज़ैनब बुलाओ मेरी भाभी को, लेकिन बीबी देख रही है, जनाब रुबाब नजर नहीं आ रही थी। बीबी जब खेमे के दूसरे खेमे में गई, क्या देखा? अजीब मंजर था। जनाब रुबाब कभी खेमे की इस दीवार के साथ, कभी इस दीवार से माथा मार रही है। बीबी फरमाती है भावल रुबाब क्या वजह है, तेरे बेटे का लाश है? बीबी कहती है ज़ैनब मुझे नजर नहीं आ
अला लानतुल्लाहि अला कौम ज़ालिमीन व वसिअ लहुम मकाना तय्यब। दरूद पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। आप आगे आ गए, मिंबर से 1 मीटर का डिस्टेंस रखना है आपने, और आप सब लोगों से भी गुजारिश है कि 1-1 मीटर के डिस्टेंस के से बैठें। जो एक फैमिली के मेंबर्स हैं वो एक साथ बैठ सकते हैं, अदरवाइज 1-1 मीटर का डिस्टेंस रखें। अब जो लोग आएंगे वो ऊपर वाले फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे ऊपर प्रोजेक्टर लगा हुआ है, सेकंड फ्लोर पे बैठ के मजलिस को समाप्त फरमाएंगे। और माह रमज़ान में मैंने किबला से रिक्वेस्ट की थी कि इस साल मुहर्रम उल हराम आप हमारे पास पढ़ें 10 दिन। तो जाहिर है कि पाकिस्तान की इतनी मसरूफियात, 4-5 जगह अशरा पढ़ना, और वहाँ पे लोग नहीं आने देते। लेकिन अब जब हालात ख़राब हुए, शरपसंद नासिर ने हालात को ख़राब किया, तो हमारे मौलाना मोहम्मद आसिफ विलायती साहब समेत तमाम हमारे अरकान इस बारे में बरी थे कि ये क्या सिलसिला पाकिस्तान में शुरू हो गया। हमारे प्रेसिडेंट महमूद शाह साहब और सब ने ये फैसला किया कि किबला से फ़ौरन रब्ता किया जाए और उनसे कहा जाए कि आगे की जो 4 मजालिस हैं वो पढ़ने के लिए यहाँ तशरीफ़ ले आए। और हम किबला के बड़े शुक्रगुजार हैं, ममनून हैं कि इतने शॉर्ट नोटिस के ऊपर किबला यहाँ तशरीफ़ लाए। और यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि हम इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के ना सिर्फ कायल हैं बल्कि कोशा रहते हैं। हमारे यहाँ पर जो मरकज़ी मजलिस होती है उसमें भी शिया सुन्नी मुश्तरका इज्तिमा होता है। हमारे तमाम नज़र न्याज के इंतज़ामात हैं वो भी हमारे अहले सुन्नत वल जमात दोस्त जो हैं वो संभालते हैं। और किबला ने हमेशा इत्तेहाद की बात की है, इत्तफाक की बात की है। आसिफ ज़ालवी साहब लोगों को जोड़ने वाले हैं, लोगों को तोड़ने वाले नहीं हैं। हमारे अब जो ज़्यादातर लोगों को मालूम नहीं होगा कि लंदन के अंदर एक मस्जिद है, वो अहले सुन्नत वल जमात की मस्जिद है, जहाँ रमज़ान में मगरिबैन के बाद तरावियाँ होती हैं और तरावी के बाद मजलिस होती है। और अभी मुहर्रम में भी वहाँ पर मजालिस का सिलसिला जारी है और वहाँ पर मगरिब और इशा की नमाज़ पढ़ते हैं अहले सुन्नत वल जमात, और उसके बाद फिर मजलिस होती है और उसके बाद फिर मातमदारी भी होती है। किबला ने वहाँ पर अशरे पढ़े हैं उस मस्जिद के अंदर, और जहाँ अशरे पढ़े हैं, जहाँ किबला खड़े होकर या ज़ेब मिंबर होकर मजलिस से खिताब फरमाते हैं, वहीं पीछे अहले सुन्नत वल जमात की जो मुक़द्दस हस्तियाँ उनके नाम भी लिखे हुए हैं वहाँ पे। तो वो इत्तेहाद है, वो इत्तफाक है। और हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, हमारे जो उलमाए किराम हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि किसी के भी मुक़द्दसात की तौहीन करना जो है वो बुरी बात है। कोई भी ऐसी बात करना जिससे शर्मिंदगी हो या इत्तेहाद को नुकसान पहुँचे, वो नहीं करनी चाहिए। लेकिन यहाँ एक बात आपको बताना ज़रूरी है कि किसी के मुक़द्दसात की तौहीन करना वो एक अलग चीज़ है, और अपने लोगों में, अपनी मजलिसों में अपना अकीदा बयान करना या अपनी हिस्ट्री बयान करना, इसमें फ़र्क है, वो तौहीन नहीं है। क्या हम इमाम हसन के जनाजे पे तीरों की बारिश ना पढ़ें? क्या फिदक का वाक़या बयान ना करें? क्या जंग जमल, ओहद, खंदक बयान ना करें? तो इस चीज़ को पेश नज़र रहना चाहिए कि हम किसी के भी जो मुक़द्दसात हैं उनकी तौहीन के कायल नहीं हैं। बरादरान अहले सुन्नत तो क्या, हिंदू, सिख, ईसाई, उनके भी जो मुक़द्दसात हैं, हम तो इस चीज़ के भी कायल नहीं है कि उनकी तौहीन की जाए। हम सिर्फ इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन ही नहीं बल्कि इत्तेहाद बैनुल मज़ाहिब के कायल हैं। और किबला की हमेशा ये जो तकारीर रही है वो इत्तेहाद बैनुल मज़ाहिब और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन पे रही है। किबला कई महीने यहाँ पहले भी रह चुके हैं और यहाँ पर बे इंतहा अहले सुन्नत वल जमात इनको पसंद करते हैं। और आज इनका नाम सुन के आज हमारी इस महफिल में भी अहले सुन्नत वल जमात के लोग खास तौर से इनको सुनने के लिए आए हैं। और जब भी किबला आसिफ अलवी साहब, तलहड़ा साहब और हमारे ऐसे जो खतीब है वो आते हैं तो अहले सुन्नत वल जमात खास तौर से हमें फ़ोन करके और इनकी मजालिस को सुनने के लिए तशरीफ़ लाते हैं। तो हम हुकूमत पाकिस्तान से ये अपील करते हैं, ये गुजारिश करते हैं कि शरपसंद अनासिर को लगाम दी जाए, सयाह को सबाक से हटाकर एक तकरीर को तोड़ मरोड़ के पेश कर देना, एक क्लिप बनाना और फिर उसको वायरल कर देना और मजालिस को ख़त्म कर देना, ज़ाकिरीन में पाबंदी लगा देना, ये जो है किसी सूरत
काबिल कबूल नहीं है। पाकिस्तान उसी वक्त कामयाब हो सकता है, उसी वक्त तरक्की कर सकता है जब हम सब एक हों और सब एक पाकिस्तानी की हैसियत से पाकिस्तान में रह रहे हों। लिहाजा मैं किबला और काबा से इल्तमास करूँगा कि ज़िब मिंबर हों और अपने मखसूस अंदाज से फ़ज़ाइल व मसाइब मोहम्मद व आले मोहम्मद बयान फरमाएँ। बावाज़ बुलंद सलावत। हबीब खुदा खातमुल अंबिया बुलंदतर सलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरुल मुमिनीन। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यति वल इकराम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व औलादिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। सुम्मा सलातु वस्सलाम अला अल सदीक़तुल मुबारका अल राज़ियतुल मर्ज़िया आलिमतु गैरे मुअल्लिमा उम्मुल किताब उम्मुल कुरान उम्मुल अनवार उम्मुल आइमा उम्मुल मासूमीन उम्मुल अलूम उम्मुल हुदा उम्मुल हसन उम्मुल हुसैन उम्मुल मोहसिन व उम्मे अबीहा आयतुल्लाहिल उज़्मा व ज़ौजते आयतुल्लाहिल कुबरा अल सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले दुआए शहज़ादी आलमियान खून हुसैन के सदक़े से आप तमाम मुमिनीन की अक़ीदत मोहब्बत और मजलिस हुसैन में शिरकत अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। इस शिरकत का बेहतर से बेहतर अजर अता फरमाए। मेरा मौला मेरा आका मेरा खुदा हमारा शुमार जनाब सैयदा के तरफदारों में अमीरुल मोमिनीन के पैरोकारों में से फरमाए। मौत की हिचकी हो ज़ुबान पे विरद अली वलीउल्लाह जारी फरमाए। कब्र की पहली रात हो ज़ियारत अमीर नसीब फरमाए। क़यामत की सुबह हो शफ़ाअत शफ़ी नसीब फरमाए। वारिस करीम के ज़हूर में ताजील फरमाए। हमें मौला के लिश्क़ हक़ में शामिल होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। दुआओं की कबूलियत के लिए दरूद सारे हज़रात मिल के बाबा से अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इजाज़त है बिस्मिल्लाह। आज की अशरा मुहर्रम की इन इख्तितामी मजालिस में कोशिश की जाएगी कि जितनी भी मजालिस हैं इसमें ज़िक्र उस पाक मुअज़्ज़मा शहज़ादी का किया जाए कि जिसका वजूद ही मकसद रिसालत है। उस शहज़ादी पर गुफ्तगू करने से पहले मुझे अपनी कम इल्मी का एतराफ़ करना है और बाब सैयदा से मांगी हुई खैरात पे एतमाद करते हुए जुमला कहना है कि किसी बशर में ताकत नहीं कि वो हकीकत ज़हरा पढ़ सके। एहतराम की ब्लॉक आबाद जनाब नासिम अलैहि साहब तशरीफ़ फरमा है। ये हो ही नहीं सकता कि कोई बंदा हो फर्जंद आदम और वो बताए कि जनाब सैयदा की सुभान अल्लाह। इस शहज़ादी को पढ़ने के लिए इस शहज़ादी की हकीकत को जानने के लिए बशर नहीं तौहीद होना
तुम्हें क्या पता कि बतूल किसे कहते हैं? तो फिर यकीनन हमें खबर ही नहीं है कि सैयदा किसे कहते हैं। शहजादी की मदद करना, शहजादी के बारे में जब भी बात होती है तो इस बीवी को ये पाक मुअज़्ज़िमा है जिस शहजादी का तारुफ करवाने के लिए हमेशा रिश्तों की पहचान बताई जाती है। ये बताया जाता है कि नबी की बेटी का नाम सैयदा है, अमीरुल मोमिनीन की ज़ौजा का नाम सैयदा है, हसनैन करीमैन की माँ का नाम सैयदा है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अकीदे वाले लोगों में ये लफ्ज़ कहने लगा हूँ, इस बीबी को अपने तारुफ के लिए किसी रिश्ते के हवाले की जरूरत नहीं। हमेशा उसे मोतबर करते हैं जिसके पास अपनी फजीलत नहीं है। इस शहजादी की ये फजीलत नहीं है कि ये नबी की बेटी है तो बेटी होने की वजह से मोतबर है, अली की ज़ौजा है तो अमीरुल मोमिनीन की ज़ौजियत में आने की वजह से मोतबर है, हसनैन करीमैन की माँ है तो शहजादे हसनैन जैसे बेटे होने की वजह से बीबी की फजीलत नहीं। बीबी की फजीलत जो है वो बीबी की जात की वजह से, बीबी की फजीलत बीबी की वजह से है। हाँ, ये बहुत बड़ा शर्फ है नबी की बेटी होना, ये बहुत बड़ी इज्जत है अमीरुल मोमिनीन की ज़ौजा होना, ये कितना बड़ा कर्म है हसनैन जैसे बेटों का होना। लेकिन इस बीबी की अपनी जात की फजीलत इतनी बड़ी है कि जब ये चादर के नीचे इकट्ठे हो गए थे और फरिश्ते ने पूछा तो मन तहतल किसा, ये चादर के नीचे कौन है, तो खुदा ने ये नहीं कहा था कि मोहम्मद की बेटी है, अली की ज़ौजा है, हसनैन की अम्मा है। खुदा ने कहा फातिमा दुआ हुआ वफालो हम बनूहा, ये सैयदा है, ये सैयदा का बाप है, ये सैयदा का बेटी है। खुदा ने नबी का तारुफ करवाया तो ज़हरा के जरिए, अली का तारुफ करवाया तो ज़हरा के जरिए, हसनैन का तारुफ करवाया तो ज़हरा के जरिए। मेरे मालिक चादर के नीचे इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, नबी के जरिए से तारुफ करवा दे, अली के जरिए से तारुफ करवा दे, हसनैन के जरिए से तारुफ करवा दे। खुदा ने सैयदा के जरिए से तारुफ करवा के बताया सैयदा को रिश्तों की जरूरत नहीं, रिश्तों को सैयदा की जरूरत है। शायर बशर मुसव्वर पाकिस्तान इकबाल ने कहा था सैयदा की निस्बत बीवी मरियम से हो नहीं सकती, मरियम यक निस्बत अजीज, ज़हरा से निस्बत अजीज। मरियम के पास इज्जत के लिए एक ही रुतबा है, ईसा की माँ। ये लफ्ज़ आसान करके दूं, मरियम का एक बेटा मासूम है, ज़हरा के 11 बेटे। सैयदा के 11 बेटे, मरियम है ईसा की माँ, ज़हरा है हसनैन की माँ। बतूल मरियम भी है, बतूल सैयदा भी है, लेकिन दोनों की बतूल होने में फर्क है। इज्जतमाब चेहरे तशरीफ फरमा है, बतूल लक़ब नहीं है, बतूल ओहदा है। जैसे नबूवत, खिलाफत, रिसालत, विलायत और इमामत, ये 5 ओहदे खुदा ने मर्दों में रखे हैं। किसी औरत को नबी नहीं बनाया, किसी औरत को खलीफा नहीं बनाया, किसी औरत को इमाम नहीं बनाया। खुदा ने मस्तूरात की दुनिया में एक ही ओहदा रखा, बतूल। जैसे मर्द अपनी मर्जी से नबी नहीं बनता, ऐसे कोई मस्तूर अपनी मर्जी से बतूल नहीं बनता। नबी भी अल्लाह बनाता है, बतूल भी अल्लाह बनाता है। बतूल कहते किसे? बतूल उस मस्तूर को कहते हैं जो शय से पाक न हो, जिसे पाकीज़गी और तहारत के लिए किसी शय की जरूरत न हो। जनाब सैयदा बतूल है, मरियम बतूल है, लेकिन दोनों के बतूल होने में फर्क है। इतना बेहतरीन और लतीफ फर्क समझाने लगा हूं, अकीदे वाला बंदा फौरन समझ जाएगा। केवल खुसूसन दुआ करूंगा। मरियम भी बतूल है, सैयदा भी बतूल है, लेकिन फर्क कितना बड़ा है। मरियम है बगैर शौहर के बतूल, सैयदा है शौहर के साथ बतूल। बगैर शौहर के बतूल होना आसान था, शौहर के साथ बतूल माशाअल्लाह। जनाब मरियम है बतूल लेकिन शौहर नहीं है, अली जैसा शौहर है, बेटी बतूल। सुभान अल्लाह। मरियम बतूल है, सैयदा बतूल है, फर्क है। मरियम छोटी बतूल है, सैयदा बड़ी बतूल है। मरियम बड़ी बाइज्जत मस्तूर है, इस वजह से नबी की माँ है, लेकिन मरियम जन्नत से खाना मंगवाती थी। जनाब मरियम की रोटियां जन्नत से आती थी, सैयदा मंगवाती नहीं थी। सैयदा ने आज पे रोटियां भेजी,
کی فضیلت کتنی بڑی ہے. عرش خدا میں کون رہتا ہے؟ جبرائیل رہتا ہے، میکائیل رہتا ہے، اسرافیل رہتا ہے، اسرائیل رہتا ہے. اب بتاؤ دہلیز سیدہ پہ کون بیٹھتا ہے؟ کمبر بیٹھتا ہے، مقداد بیٹھتا ہے، ابو ذر بیٹھتا ہے، سلمان بیٹھتا ہے. کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ ایک دن میں جناب کمبر نے کہا ہو یا علی مجھے جنت میں بھیج دیجیے، فضہ نے کہا ہو مجھے حج سے روٹی منگوا دیجیے، سلمان نے کہا ہو مجھے جنت کی سیر کروا دیجیے. یہ گھر والے ادھر جانے کی تمنا نہیں کرتے. ادھر والے کبھی درزی بن کے، کبھی فقیر بن کے، کبھی حیدر 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 ہمارے پاس جناب سیدہ صرف ذات کی صورت میں موجود نہیں، معیار کی صورت میں موجود. کیا کہنے، واہ واہ واہ. سیدہ ہم اہل تشیع کے ہاں صرف ایک ذات نہیں، ایک معیار. ہم سیدہ کو معیار بنا کے دیکھتے ہیں، بطول کن سے راضی ہے. ہماری جان قربان رسول کے ان صحابہ پہ، ہماری جان قربان رسول کے ان سچے ساتھیوں پہ جن کو سیدہ باپ کا نوکر سمجھ کے نہیں بلاتی تھی، رشتوں کے ساتھ بلایا کرتی تھی. جناب سلمان محمدی کے لیے بھی لفظ سلمان استعمال نہیں کرتی تھی، یہ چچا سلمان. فضہ کو بی بی کنیز سمجھ کے نہیں بلاتی تھی، بہن کہہ کے بلایا. یہ ہے شہزادی ہمارے لیے معیار ہے جناب سیدہ. اتنا بڑا معیار ہے کہ آج بھی شیعہ گھروں میں برکت کے لیے، رحمت کے لیے، گھر میں کوئی کام ہو رہا ہو اور رکاوٹ آ رہی ہو، رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے شیعہ گھروں میں حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے. حدیث قصہ کا مرکز ہی جناب سیدہ ہے. حدیث قصہ زہرا کے قصیدے کا نام. نہج البلاغہ علی کی بلاغت بتاتا، حدیث قصہ زہرا کی طہارت بتاتا. کیا ہے حدیث قصہ؟ یہ اس صحابی سے روایت کی گئی جس نے 5 حجتوں کی خدمت کی. یہ صحابی نہیں، حضرت جابر بن عبداللہ بن انصاری ہماری جان قربانی صحابی میں، جس نے رسول کا دور دیکھا، جس نے امیر المومنین کا دور دیکھا، جس نے جناب حسن کی خدمت کی، جس نے حسین مولا کی خدمت کی، جناب سجاد کی نوکری کی، جناب باقر کی نوکری. اتنا سچا راوی ہے کہ بی بی نے اسے حدیث خود سنائی ہے. حدیث قصہ کے لفظ کیا ہیں؟ حدیث قصہ کے لفظ ہیں کہ رسول نے آ کے کہا سیدہ مجھے چادر اڑا. لفظ تبدیل کر کے سناؤں گا تو میرا خیال ہے کہ دعا یہاں سے حاصل ہوگی. کس نے کہا؟ رسول نے نہیں کہا زہرا مجھے چادر. کملی والے نے کہا زہرا مجھے چادر دے. جس کے بدن پہ پہلے سے 2 چادریں موجود تھیں، عبا کی صورت میں موجود تھی، امامہ کی صورت میں موجود تھی، وہ کہہ رہے ہیں سیدہ مجھے چادر اڑا. سیدہ نے اپنی چادر رسول کو اڑا دی. رسول چادر کے نیچے آ گئے. رسول نے کہا میں سکون محسوس کرتا ہوں. جس کی چادر نبوت کو شفا دیتی ہے. کملی والے کی کملی میں آنے کی تمنا کرنے والوں پہلے دیکھو کہ کملی والے کو کس کی چادر. سیدہ کی چادر کے نیچے آ کے رسول کو سکون ہو گئے. یہ حدیث سے قصہ آگے بڑھتی ہے کہ اتنی دیر میں ایک شہزادہ صحن عصمت میں داخل ہوا. اس نے آتے ہی کہا یا اما کہیں سے نانا کی خوشبو آ رہی. نبوت وجود سے نہیں، خوشبو سے بھی پہچانی ہے. اما کہیں سے نانا کی خوشبو آ رہی. کس نے کہا؟ امام حسن نے. کس سے کہا؟ سیدہ سے کہا. سیدہ نے کہا وہ چادر کے نیچے ہے رسول. اب مجھے میرا مجمع بول کے بتائے یہ کون تھے؟ یہ کوئی غلام نہیں آیا، یہ امام آیا. اور یہ وہ امیر حسن آئے ہیں جو ماں کی گود میں بیٹھ کے لوح محفوظ پڑھ لیتے. جو ماں کی گود میں بیٹھ کے لوح پڑھتا تھا، اسے صحن میں نانا نظر کیوں نہیں آیا؟ سوال سیدہ سے پوچھا. فرمایا وہ چادر نیچے ہے رسول.
حسن السلام علیکم یا رسول اللہ، نانا بیٹے کا سلام ہو، علیہ السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی، اے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک، اے میرے دل و جان کی میوہ، تجھ پہ میرا سلام ہو۔ نانا اجازت ہے میں چادر کے نیچے آ جاؤں؟ رسول نے چادر کا پلو اٹھایا، حسن چادر کے نیچے، حدیث ہے کہ سامنے ایک راز پڑھو اور سلام کرو، تھوڑی دیر بعد دوسرا شہزادہ آ گیا جس کا نام حسین ہے۔ سوال اس نے پھر وہی کہا، اما نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہاں پہ جو بندہ ذہنی طور پہ جاگ رہا ہے وہ داد دے گا۔ حسین نے ابھی یہ نہیں کہا کہ نانا کی اور حسن کی خوشبو آ رہی ہے، صرف نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ کہہ سکتے تھے کہ اماں مجھے نانا کی اور حسن بھائی کی خوشبو آ رہی ہے، صرف رسول کی خوشبو۔ اس کا مطلب ہے رسول کے بدن کی خوشبو، امامت کے بدن کی خوشبو۔ ہمیں نانا کی خوشبو آ رہی ہے، فرمایا صرف نانا ہی نہیں، ساتھ بھائی بھی چادر کے نیچے۔ حسین چادر کے قریب آیا، السلام علیکم یا رسول اللہ، نانا بیٹے کا سلام ہو۔ اب حسین کو جب دیکھا تو اب نبی نے بھی لقب بدل دیا، اب نبی نے بھی سلام کا جواب بدل دیا، واضح علیہ السلام یا قرۃ عینی بس یا میری آنکھوں میں ٹھنڈک، یا میرے دل و جان کے میوہ۔ جب رسول کو پتا چلا کہ چادر کے باہر حسین کھڑا ہے، رسول نے کتنا خوبصورت جملہ کہا، یا شافع امتی، اے میری امت کی شفاعت کرنے والے، اے میری امت کی شفاعت کرنے والے، اے میری امت کی شفاعت کرنے والے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کہ مسلمان نہیں کہہ رہا بلکہ خود شافع امت کہہ رہا ہے، خود شفاعت کرنے والا کہہ رہا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کے پاس بہت سے لفظ تھے، آپ حسین کو دل کی ٹھنڈک کہتے تھے، آپ حسین کو اپنا خون کہتے تھے، آپ حسین کو لہو کہتے تھے، شافع امتی کیوں کہا ہے؟ تو میں آج چادر زہرا کے نیچے حسین کو شافع امت کہہ کے زمانے کو بتا رہا ہوں، قیامت کے دن شفاعت کروانے کے لیے صرف رسول کی ضرورت نہیں، حسین کی محبت کی ضرورت ہے۔ اجازت ملی تو حسین چادر کے نیچے، اجازت ملی تو حسن علیہ السلام چادر کے نیچے۔ بڑا خوبصورت جملہ سن، حسن اور حسین چادر کے نیچے آئے، یہاں ایک تیسری شخصیت سے اب لفظ تبدیل کریں تو صاحب منبر سلونی نے زہرا سے پوچھا، جو صاحب منبر سلونی نے سیدہ فرش پہ بیٹھ کے عرش کے رستے دکھانے والے نے، باب العلم نے زہرا سے پوچھا، آگے کہا سیدہ رسول کہاں ہے؟ صرف رسول ہی نہیں، معاملہ ساتھ آپ کے دو بچے چادر کے نیچے ہیں۔ اب مجھے صدر میں بزرگوں سے دعا چاہیے، دوستوں سے داد چاہیے۔ حسن امیر آئے تو سیدہ سے پوچھا، سیدہ نے رسول تک پہنچایا۔ حسین آئے، سیدہ سے پوچھا، سیدہ نے رسول تک پہنچایا۔ علی آئے، سیدہ سے پوچھا، سیدہ نے رسول تک پہنچایا۔ تین حجتوں نے سیدہ کے وسیلے سے رسول تک پہنچ کے دنیا کو یہ درس دے دیا ہے کہ جب ہم اللہ کی حجتیں زہرا کے بغیر رسول سے نہیں مل سکتی تو تم زہرا کی محبت کے بغیر رسول کی محبت کا دعویٰ نہیں۔ حیدر 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 تینوں کی تینوں حجتوں نے سیدہ کے وسیلے سے رسول تک پہنچا۔ پہلے سیدہ پھر رسول، پہلے سیدہ پھر، یعنی کہ رسول تک آنے کے لیے زہرا کا وسیلہ ضرور ہے۔ ماشاءاللہ کسی کے پاس وسیلہ رسالت اور وسیلہ زہرا نہ ہو تو کبھی بھی محبت رسول کا دعویٰ نہ کرے، محبت رسالت کا دعویٰ کرنے کے لیے زہرا کی محبت کا دعویٰ کرنا۔ یہ تینوں حجتوں نے آگے رسول سے پوچھا۔ اگلی سطر جو سردار بیٹھا ان سے دعا لوں، ان تینوں میں سے کوئی بغیر اجازت کے چادر کے نیچے نہیں آیا۔ کوئی مجھے ایک پھٹی سے پھٹی کتاب سے ثابت کیا جائے کہ جب حسین نانا کی پشت پہ آئے تب کاندا پکڑ کے ہلا کے کہا تھا اجازت ہے میں نماز میں آ جاؤں؟ واہ 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 واہ۔ جب علی کعبہ میں آئے تھے تو کہا تھا کہ اجازت ہے میں کعبہ میں آ جاؤں؟ جب حسن رسول کے کاندھے پہ آئے تھے تو پوچھا تھا اجازت ہے میں کاندھے پہ آ جاؤں؟ وہاں اجازت کے بغیر گئے، سیدہ کی چادر میں اجازت کیوں مانگی؟ سیدہ کی چادر میں اجازت مانگ کے دنیا کو بتا دیا ہے وہ نماز کبریہ ہے، یہ حجاب کبریہ ہے۔
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी। जनाब सैयदा बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इजाजत सैयदा, चादर सैयदा के नीचे आने के लिए इजाजत का होना बड़ा जरूरी है। आज की गुफ्तगू यहाँ तक रोकेंगे क्योंकि मुसाहिब तवील होगा। यहाँ लफ्ज कहना चाहूंगा आंखों के आंसू के लिए, जिस चादर में बेटे बगैर इजाजत के नहीं आते थे, उस घर में मुसलमान बगैर इजाजत के कैसे? हमारी जान कुर्बान सैयदा तेरी सदाकत पे, हमारी जिंदगी कुर्बान। 1,00,000 दफा भी जिंदगी कुर्बान करनी पड़े बगैर सोचे हुए करते हैं सैयदा तेरी सदाकत के लिए। नबी की बेटी कल भी सच्ची थी, आज भी सच्ची है। जिसकी चादर के नीचे बेटे बगैर इजाजत के नहीं आए, उसकी बेटी के खैमे में मशकूर व ममनून हूँ दुआ ज़हरा की इंतजामिया, जिन्होंने इस मुश्किल हालात में हमेशा की तरह हुसैन के ज़ाकिर का साथ दिया। हमारा तुम्हारा रिश्ता सिर्फ इसी हवाले से मोतबर है कि हमारा रिश्ता विलायत का रिश्ता है। मैं मशकूर व ममनून हूँ जनाब क़िबला बाबा सरकार मौलाना आसिम वलैती साहब अशरा मुहर्रम वो पढ़ रहे हैं मेज़बान होने की हैसियत से। उन्होंने मुझे फकीर को मेहमान समझ के मेंबर दिया कि मैं शहजादी के बेटे के दुख हो गया जंगल में मोहम्मद का बेटा प्यासा। दियार गैर में आज पानी बंद कर दिया गया। बहते दरिया से कहने उखाड़ लेंगे। अब्बास की मौत से ज्यादा अब्बास पे सख्त था अली की बेटी का ख्याल। कितना बड़ा सब्र था अब्बास के लिए। जब हुसैन ने कहा अब्बास खैमा उखाड़, अब्बास रो के कहता मुझे सिर्फ इतना बता तेरी मां ने मेरे आने की दुआ क्यों मांगी? वरना मेरी अम्मा कहा करती थी अल्लाह अली को एक बेटा देगा तो मेरी बेटियों की चादरों का वापस। अब्बास रो के कहने लगा जिसके लिए दुआ मांगी थी आज वही खैमा उखाड़े। अब्बास अभी रो रहे थे या खैमे के अंदर से आलिया की आवाज आई अब्बास खैमा उखाड़ता है कि ज़ैनब बाहर? तड़प के कहने लगा तेरे पर्दे की खातर तो अब्बास जंगलों में खामोश। आज है हसन के बेटे की महदी। बड़ा खूबसूरत लफ्जों में बयान कर रहे थे किबला कि जो लोग शिया होकर महदी पे एतराज करते हैं कि हसन की महदी करबला में तो थी नहीं, तो करबला में असर के लिए पानी भी मौजूद नहीं था, हम सभी ने क्यों लगाते? करबला में तुम्हें खाना नहीं था, डंगर और न्याज़ें क्यों बनाते? ये सब कुछ क्यों है? इस वजह से है कि हमारी हसरत है काश हम करबला में होते। हुसैन हम ऐसे पानी पिलाते, काश हम करबला में होते, हुसैन हम ऐसे खाना खिलाते। हम अपने जंजीर जब जिस्म पे मार के कहते हैं काश हम करबला में होते, हम अपने बदन को जख्मी करवा लेते, ज़हरा का बेटा तू जख्मी न हो। हमारी हसरत है काश हम करबला में होते, फिर कासिम के सर पे सेहरा सजता। हर माँ की हसरत होती है जैसे जैसे बेटा जवान होना शुरू हो, माँ की हसरतें जवान होनी शुरू हो। माँ जिंदा ही बेटे के सर पे सेहरा देखने के लिए। जितने बैठे हो अल्लाह तुम्हें माओ को नसीब करे, बेवा माँ की हसरत ज्यादा होती है। उसकी हसरत होती जल्दी जवान हो जाए। कासम की माँ रोज कासम का चेहरा देखती रो के कहती मेरी बड़ी हसरत है मैं तेरे सर पे सेहरे देखती। शब अशूर है 10 मुहर्रम की रात है, सुबह मक्तल सजने वाला है, ज़हरा की बेटियों के खैमों के पहरे दिए जा रहे हैं। 2 शख्सियात पहरा दे रही हैं, एक घोड़े पे सवार है जिसे अली अकबर कहते हैं, एक सवार है जिसे अब्बास कहते हैं। दोनों पहरा देते देते गुफ्तगू कर रहे हैं। अब्बास कह रहे हैं अली अकबर कल ये मैदान मैदान नहीं रहेगा, यहाँ मक्तल सज जाएगा।
गया, अली अकबर मेरी बड़ी हसरत है, काश तेरा बाबा हुसैन सुबह सबसे पहले मुझे इजाजत दे, मैं ऐसे तलवार के चोर दिखा जो बैत मांगने के लिए गए, इन्हें बताऊं कि अली के बेटे कैसे होते हैं, अली के शागिर्द कैसे होते हैं। अकबर रो कहते ना चाचा अब्बास, अगर कल इजाजत मिले तो सबसे पहले मुझे मिले, तेरे न जाने से ना, अगर तू चला गया तेरे जाने से मेरे बाबे की कमर टूट जाएगी। इतना कहना था, अब्बास ने जल्दी से अकबर के चेहरे पे हाथ रखा, रोका तू मैदान में जाने की बात न कर, तेरे जाने से हुसैन की आंखों का नूर चला जाएगा, तू आलिया का भी बेटा है, तू हुसैन का भी बेटा है। अकबर कहते थे पहले मैं जाऊंगा, अब्बास कहते थे पहले मैं जाऊंगा, या कहने की खुश से एक 13 साल का बच्चा दौड़ के आया, दोनों के सामने छोटे छोटे हाथ जोड़े, रोका ना तू जाना ना तू जाना, तेरे जाने से कमर टूटेगी, तेरे जाने से आंखों का नूर जाएगा, सुबह सबसे पहले मुझे जाने देना, मैं यतीम हूँ, न किसी की कमर टूटेगी, न किसी की आंखों का नूर जाएगा। हुसैन ने कभी मत छोड़ा, दौड़ के आके कासिम को सीने से लगाया, तुझे किसने कहा है तेरे जाने से मेरे नुकसान कोई नहीं, तेरे जाने से मेरे 2 घर बर्बाद होते हैं, एक हसन की तस्वीर जाती है, दूसरा मेरी बेटी की तकलीफ। तुझे किसने कहा है कि तेरे जाने से नुकसान, मक्तल सज गया, जो जाता था वो करबला में कुर्बान होता। अब्बास लाश लेके आते, हुसैन टीले में लाश का इस्तेमाल करते, फिजा दरवाजे में करती, अली की बेटी खैर में करती। 11 बार तारीख कहती है कि कासिम गए हैं हुसैन के पास, पहली बार जाकर मौला इजाजत, हुसैन की आवाज़ बेटा पलट जा, दूसरी बार आया आगे का फर्जंद रसूल इजाजत, आखिरी बार आके कदमों पे हाथ, चचा हुसैन, हुसैन रो कहते कासिम पलट जा। 11 बार कासिम आए, माँ के पास जा कहते अम्मा यतीम समझ के नहीं हुसैन भेजे, बीबी की आवाज़ अब इजाजत मांगी, कासिम मांगी इजाजत, कासिम ऐसे कर अब्बास को बुलाइए, अब्बास कहने के दर पे आए, कासिम की माँ रो के कहती है अब्बास मेरा एक काम कर, हो फरमाया कासिम के बाजू में तवीज खोल, तवीज खोला, फरमाया तहरीर पढ़, ये तहरीर किसकी थी, मौला हसन की लिखी, जनाब अब्बास रो पड़े, फरमाया कासिम की माँ ये तहरीर कहाँ से, फरमाया जब जहर मिल गई थी तो मुझे जल्दी से कहा था कागज कलम में एक तहरीर लिखी से तवीज बना के कासिम के बाजू में डाला था। अब्बास बता तहरीर में लिखा क्या, अब्बास कहता लिखा है कि कल जब दीन को लहू की जरूरत पड़े, मेरा कासिम यतीम समझ के नजरअंदाज न करना, मेरे कासिम को हसन की जगह पर खैर में कासिम की माँ के रोने की सदा आई, एक हाथ कासिम का अब्बास ने थामा, दूसरा हाथ कासिम की माँ ने थामा, हुसैन टीले पे आते हुए गाजी को और फरवा को कासिम को लाते हुए देखा, हुसैन ने मुट्ठी रेत उठा के अपने चेहरे पे सिफार से बड़ी आ गई, कासिम की माँ का जनाब हसन की बीवी का इतनी इज्जत और इतना हया करते थे करीब करबला, हुसैन उठ के फरमाया कासिम की माँ को आने की जरूरत नहीं थी, पैगाम भेज देती हुसैन आ जाता, फरमाया हाजतमंद को चल के जाना पड़ता है, जिसकी हाजत हो उसे खुद आना पड़ता है, कौन सी हालत है कासिम की, लोग कहते मेरा बेटा मक्तल में भेज, मक्तल में भेजने का नाम आना था, हुसैन ने कासिम को सीने से लगा, लोग कहते तेरा बेटा है, जवानी हो इसके नसीब हो, तड़प के कहती है मुझे बता अकबर से ज्यादा खूबसूरत, आलिया के बेटों से ज्यादा प्यारा, अगर शोहदा में उनके नाम है तो फिर कासिम का नाम भी होना चाहिए। हुसैन ने कासिम को करीब किया, शोहरा आफाक जुमला जो करबला पढ़ी जाती है तो ये जुमला जनाब कासिम के नाम के साथ मंसूब हो गया, हुसैन लोग बोले कासिम मौत को कैसा पाता, ये जुमला सिर्फ शहजादा कासिम के हिस्से में आया, फरमाया शहद से ज्यादा मीठा, हुसैन ने उभरती हुई दाढ़ी को चूमा, रो के कहा हसन का बेटा तेरे जवाब के सदके, ये करबला का पहला शहीद है जिसे हुसैन ने उठा के घोड़े की सींग में बिठाने के बाद फरमाया अब्बास जिर्रा दे, जिर्रा का नाम आना था, कासिम ने हाथ रोके का चला गाजी जिर्रा की जरूरत नहीं, जिर्रा वो पहनते हैं जिन्होंने सीना बचाना, मुझे जिर्रा की जरूरत नहीं, एक तरफ से अब्बास सवार करवाया, दूसरी तरफ से हुसैन, एक एक शहजादी एक एक सैयद, खैर में कासिम का घोड़ा गया, कोई कहती वाह हसना, कोई कहती वाह मुदीना, इधर से जनाब कासिम के घोड़े का मक्तल की तरफ जाना था, हुसैन टीले के नीचे खड़े, अब्बास टीले के ऊपर खड़े हो, फिजा दरवाजे पे खड़ी होगी, आलिया मुसल्ले पे खड़ी होगी, जनाब कासिम ने इतना जोरदार हमला किया, फौज फुरात के किनारे पे, फौजों का फुरात के किनारे पे जाना था,
कासम की माँ की आवाज है, कासम ऐसे लड़ना, अपने बाप के लगे हुए तोहमत को धोना। लोग कहते हसन को लड़ने का तरीका नहीं आता। जनाब कासम ने तलवार निकाली, मैं हसन का बेटा हूँ, मैं हुसैन का बेटा हूँ, मैं गाजी का शागिर्द हूँ, मैं अली का लहू हूँ। कासम ऐसे हमला कर रहा था, अब्बास ने बिगड़ा, मरहबा हसन का बेटा, मरहबा हसन का बेटा। ऐसे होते हैं अली के लहू, ऐसे होते हैं अली के शागिर्द। ये चारों तरफ से फौजें इकट्ठी होनी शुरू हुई। हसन के दोनों बेटों को वहां से जख्म किया, इस मलाउन को वहां से जख्म किया। या एक कमीने ने घुटना लगा के कासम के पहलू पे नेज़ा मारा, कासम के पहलू पे नेज़े का लगना था। कासम घोड़े की जीन से उतरना शुरू हुआ। अब्बास जल्दी से घोड़े पे बैठे। हुसैन की आवाज़ गाजी कहाँ जा रहा है? फरमाया मेरा शागिर्द घोड़े की जीन से गिर रहा है। हुसैन की आवाज़ है अब्बास का कासम का हमला देख, उभरती हुई जीन से दोबारा कासम सामने आया। कासम के सामने आना था। एक कमीने ने कासम के माथे में गोद मारा। कासम दूसरी तरफ गिरा। मुझे सैयद बैठे मुझे माफ कर देना। हसन का बेटा नज़ीर पे था, नज़ीर पे था। कमीनों ने चारों तरफ से हमला शुरू किया, चारों तरफ से हमले का करना था। कासम की वाली बाबा में गिर गया, मौला में गिर गया, चचा में गिर गया। इधर कासम का मकतल में गिरना था। कमीना खड़ा होकर कहने लगा, हुसैन की आने से पहले दाएं के घोड़े बाएं को डालो। चारों तरफ से घोड़ों का दौड़ा शुरू हुआ। जो सैयद बैठे मुझे माफ कर दिया। हुसैन घोड़ों के दरमियान कोहनियों के बल कह रहा, किसी ने मेरा बेटा देखा हो, किसी ने मेरा जवान देखा हो, अब मेरा 13 साल घोड़े मिलने शुरू, घोड़े दौड़। हुसैन घोड़ों के दरमियान कासम को ढूंढ रहा। अगली गुर्बत पढ़ूंगा, घोड़ों की आवाज आई। हुसैन ने इमामा उतार के चादर बना कर तुम्हारे डर से सिर्फ जाकर पढ़ते हैं। हुसैन ने कासम की लाश करबला की रेत से उठाई, अल्लाह की बेटी को सैयदा के पहलू में जगह अता फरमाए। जाकर तुम्हारे डर से पढ़ते हैं। हुसैन ने रेत से इकट्ठी की, रख मेरे सर पे कुरान, मुझे गाजी की अलम की कसम है। हुसैन ने कासम घोड़ों के सुन्नों के नीचे आज भी मेहंदी बरामद हो तो चोटी गठरी होती है। शहीद है कासम, जिसकी लाश हुसैन ने ऐसे नहीं अपने दोनों बाजुओं में हुसैन ने कासम की गठरी को संभाला। आते हैं तो मक्तल कहती थी, फिजा दरवाजे में कहती अली की बेटी हुसैन लाश पा रहे। बीबी दरवाजे में आके खड़ी हो जाती। आलिया ने दरवाजे में खड़े होकर देखा कि हुसैन तो तन्हा है। आलिया की कब्र के पीछे खड़ी थी कासिम की माँ। लोग कहती है बीबी हुसैन से पूछ, मेरा बेटा यतीम समझ के मक्तल में छोड़ आया है। आलिया की आवाज आई, हुसैन कासिम कहाँ है? हुसैन को कहते कासिम नहीं, अब तकसीम हो गया। कासिम नहीं कहा, कासिम की लाश उठाने के इसी जुमले में मेहंदी का मज़मून भी है, इसी में मेहंदी का नोहा भी है, इसी में मेहंदी की बराबरी हो जाएगी। जब कासिम की लाश गठरी बन के आलिया के खैमे में किबला तशरीफ फरमा है। करबला के हर शहीद की लाश पहले आलिया के खैमे में आती है। जिसका बेटा होता वो आलिया के खैमे में आती है। कासिम की मां फरमाए, अल्लाह के अली की बेटी के सामने हाथ जोड़े, बीबी नौकरी की है तेरे घर की, बीबी हसन की नौकरी की है, बीबी मुझे इतनी इजाजत है, मैं एक तन्हा बैन करना चाहती हूँ। के बाद हर कोई मेरा कहना छोड़ो। कासिम की माँ कासिम की लाश में रोने के लिए आई है। माँ बहनों बेटियों के लिए जुमला पढ़ने लगा हो। कासिम की लाश गठरी की सूरत में मौजूद थी। कासिम की माँ रोती हुई गठरी के करीब पहुंची, एक एक टुकड़ा उठाती चूमती रख देती, एक एक टुकड़ा चूमती रख देती। तेरी आगे रो कभी कासिम की माँ कर क्या रही है? रो कभी मेहंदी वाले हाथ जोड़ रही हो, चेहरे वाला चेहरा जोड़ रही हो। बीवी ने कासिम का लहू लिया, अपने सफेद बालों पे मला। रो कभी मेरी बड़ी हसरत थी, मेरा कासिम चेहरे सजाएगा, मैं बालों पे मेहंदी लगाऊंगी और मेरे
कासम की बारात उजड़ गई और मेरे कासम के चेहरे उजड़ गए। महू भरने दा वहाँ किया पर्दा जे खून की मैं आई तेरी लाश रोते गठरी खोल विखाई मामू बचरे दा चुमन लगी तस्वीर नजर नहीं आ बैठी बर्ग गुलैनिया चेहरे दे मुँह पुत्र दा तुम दिहाबी मैं को नहीं लब दे रुख सार कसम मैं डिठन बर्ग तमा मैं को नहीं लबदा हथ गाने वाला ते जरा जुल्म कमा गे शामी मन आखो मैं दी नू उजड़ी थी वारिस नाल मैं को नहीं लबदा हथ गाने वाला ते जरा जुल्म कमा गे शामी मन आखो मैं ढीनू उजड़ी थी मैं वारिस नाल कला या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन अली शाह जी या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन खैमिया दे समझावे मेहदिया वाले नू दर्दा दी मारी मां विच खैमिया दे समझावे मेहदिया वाले नू दर्दा दी मारी मां विच खैमिया दे समझावे विच खैमिया दे समझावे मेहदिया वाले नू दर्दा दी मारी मां विच खैमिया दे
ਸਮਝਾਵੇ ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਦੀ ਮਾਰੀ ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖੈਮਿਆਂ ਦੇ ਸਮਝਾਵੇ ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਦੀ ਮਾਰੀ ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖੈਮਿਆਂ ਦੇ ਸਮਝਾਵੇ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਏ ਕਾਸਿਮ ਬਚੜਾ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਏ ਕਾਸਿਮ ਬਚੜਾ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਵੇ ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਮਾਰੀ ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖੈਮਿਆਂ ਦੇ ਸਮਝਾ ਸਾਰੇ ਪੜ ਕੇ ਆਓ ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਮਾਰੀ ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖੈਮਿਆਂ ਦੇ ਸਮਝਾਵੇ ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਮਾਰੀ ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖੈਮਿਆਂ ਦੇ ਸਮਝਾਵੇ ਮਰਜ਼ੀ ਏ ਕਾਸਿਮ ਬਚੜਾ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਏ ਕਾਸਿਮ ਬਚੜਾ ਅੱਜ ਪਿਓ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਵੇ ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਮਾਰੀ ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖੈਮਿਆਂ ਦੇ ਸਮਝਾਵੇ ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਮਾਰੀ ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖੈਮਿਆਂ ਦੇ ਸਮਝਾਵੇ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਏ ਕਾਸਿਮ ਬਚੜਾ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਏ ਕਾਸਿਮ ਬਚੜਾ ਅੱਜ ਪਿਓ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਵੇ ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਮਾਰੀ ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖੈਮਿਆਂ ਦੇ ਸਮਝਾਵੇ ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਮਾਰੀ ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖੈਮਿਆਂ ਦੇ ਸਮਝਾਵੇ ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਮਾਰੀ ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖੈਮਿਆਂ ਦੇ ਸਮਝਾਵੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਫੌਜੇ ਲਾਈਨ ਹੋਵੇ ਜਿਦਾ ਜਿਹਾਦ ਕਰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਮੌਤ ਹੋਵੇ ਤੈਨੂੰ ਮਜਦੂ ਦਾ ਗਾਜ਼ੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹੁਸੈਨ ਬੁਲਾਵੇ ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਮਾਰੀ ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖੈਮਿਆਂ ਦੇ ਸਮਝਾਵੇ ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਮਾਰੀ ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖੈਮਿਆਂ ਦੇ ਸਮਝਾਵੇ ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਮਾਰੀ ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖੈਮਿਆਂ ਦੇ ਸਮਝਾਵੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਫੌਜੇ ਲਾਈਨ ਹੋਵੇ